चिराग बन के अंधेरों को मिटाता चला गया, वो रहनुमा था जो कौम को जगाता चला गया. Every year this campus glows like a beautiful bride and the air is filled with joy and celebration. Salam, Adab. I am Fatma and you're watching me on Next Gen Journalist. Ever since I was a kid, I have loved telling stories. So come along me as I explore my passion for journalism and see where it leads. Today we walk through the heart of Aligarh to see what this day truly means to the people who carry forward his legacy. The lawns are lit, the air is full of excitement, and so are the students. What's the most exciting part about Sir Syed Day for you? It's Sherwani. Wow, see the vibe and energy at Sir Syed Day. My name is Amani Amadiyakun. I'm from Thailand and I'm studying in BA Communication English. So this is my fourth time to get experience in this celebration. But I'm still excited and look forward to this celebration in every year. And this celebration will decorated by colorful lights around the building of university, like the Faculty of Art, Maulana Azad, or even the Centenary Gate in front of AMU. So everything will look like a lively, beautiful white. So I love it. So if Sir Syed Ahmad Khan were alive today, what would you like to tell him? I would like to appreciate him for his foresight and for the efforts that he made for us. How relevant do you think Sir Syed's vision is in today's world? It is highly relevant even today as we look forward towards Sir Syed's philosophy. Sir Syed कहते थे कि in our student, modern science will be in their right hand and the philosophy will be in their left. And the crown of theology will adorn on their head. Sir Syed इससे मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स में राइट हैंड में मॉडर्न साइंस यानी प्रैक्टिकल नॉलेज और लेफ्ट हैंड में फिलॉसफी से क्रिटिकल थिंकिंग और थियोलॉजी के जो क्राउन है उससे हम अपने बिलीफ से भी जुड़े रह सकते हैं. जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं दुनिया मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ वैल्यूज, एथिक्स, यूनिटी ये कम होती जा रही है. तो सर सैयद की वैल्यूज, सर सैयद का विजन हमें याद दिलाता है कि किस तरीके से हम आज भी इतिहाद पैदा कर सकते हैं. मैं एक सर सैयद का कोट और सर सैयद की स्टोरी अर्ज करना चाहूँगा. सर सैयद बोलते थे कि हिंदुस्तान एक बगीचा है और इस बगीचे के दो मुख्तलिफ फूल हैं, हिंदू और मुस्लिम, और जो इस बगीचे में खुशबू का काम करते हैं. तो इस तरीके से सर सैयद यूनिटी का पैगाम दे रहे हैं. तो ओवरऑल सर सैयद का जो मैसेज ऑफ रेशनल थिंकिंग है, टॉलरेंस है और यूनिटी है, वो आज भी रेलेवेंट है. Hi, do you feel like Sir Syed Day is more like a festival at AMU? Yes, Sir Syed Day at AMU feels more like a festival than just an event. Everyone is so excited and there are many cultural programs, there are many speeches and many events. The whole campus lights up. Do you think Sir Syed Day unites the whole campus? Definitely, Sir Syed Day really unites the entire AMU campus. You can actually feel the sense of togetherness on this day. Everyone, student, faculty members and alumni of this university comes together to celebrate his legacy and vision. And it's just not a formal celebration. It's more like a family coming together. It's just a birthday. एक एजुकेशनिस्ट थी जिन्होंने अपने दौर में बहुत बड़ा काम किया, लेकिन आज उसकी क्या रिलेवेंस है कि हम अभी तक इतने सालों बाद तक उनके विलादत को मना रहे हैं. आप महजूब हिजाब में तो हैं माशाल्लाह, लेकिन आप अंग्रेजी डिपार्टमेंट से आई हैं. आप जिस कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं या हम जिस तबके से ताल्लुक रखते हैं, हमारे तबके में हमारे दादा या उनके दादा के यहाँ न ये ज़बान सीखना अलाउ था, उसकी इजाज़त थी, न ये तहजीब सीखना. और ये तहजीब, ये ज़बान जब हिंदुस्तान के मुसलमानों को उनकी हुकूमत उनसे छीन के जिल्लत आमेज शिकस्त दे दी अंग्रेज़ों ने, तो ये तय हो गया कि बहुत दिनों तक इनका इजारा रहेगा. बर्र सगीर पर या थर्ड वर्ल्ड पर, जो भी आप इसको नाम दे दें, हिंदुस्तान पर. और मशहूर तो ये हो गया था ना कि इनका सूरज कहीं नहीं डूबता, वाकई नहीं डूबता था. इनकी कॉलोनीज तो बनती चली जा रही थी, वो समझते थे. सर सैयद ने इस बात को महसूस कर लिया. दूरंदेश ऐसे ही आदमी होता है. तो सर सैयद इस रास्ते पे चल पड़े जो गालिब का दिखाया हुआ रास्ता है. और फिर सर सैयद को लगा कि कौम की फलाह इसमें है कि अंग्रेजी तहजीब और अंग्रेजी तालीम और अंग्रेजी तरीक़े तालीम और अंग्रेजी तरीक़े तदरीस और तरीक़े तालीम और तदरीस ही नहीं, तरीक़े नशिस्त व बर्खास्त, इन सबको अपना लिया. सर सैयद पर क्रिस्टान का इल्ज़ाम लगा. क्रिश्चियन, उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, जो इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो क्रिस्टान मशहूर हो गया था, तो सर सैयद क्रिस्टान हो गए. सर सैयद को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उन्होंने एक ऐसा इदारा कायम किया जहाँ जो मिसाल जिसके सामने थी कैम्ब्रिज, ऑक्सफर्ड, जो एहसास कमतरी था उससे निकालने की कोशिश की. ये एहसान जो किया तो उसकी याद बनाते हैं. अच्छा, बाबा मर गए और ये सर सैयद हाल के साउथ के एक हिस्से में दफन हो गए, लेकिन उनके चाहने वालों ने उनके फैज, जो पहली नस्ल थी जिसने फैज पाया, उसको उन्होंने
इस तरह से तालीम दी थी, या एक जो जज्बा था अपना वो मुंतकिल कर दिया। तालीम हम आपको दे दें, आप हमें दे दें, फिर हम दोनों अलग हो गए, आपको नहीं पहचानेंगे, आप में नहीं पहचानेंगे। लेकिन अगर हम आप में मोहब्बत इल्म मुंतकिल करने, अखलाक मुंतकिल करने में कामयाब हो गए तो आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे। तो सर सैयद ने सिर्फ तालीम नहीं, तहजीब, तालीम और तहजीब के साथ अखलाक, अखलाक के साथ दर्दमंदी, दर्दमंदी के साथ गरीबों का ख्याल करना और अपने तबके के अपलिफ्टमेंट, उसके उठाने का जो कारनामा अंजाम दिया, जो इसको मुंतकिल कर दिया जिस तरह। उसके बाद जो लोग पैदा हुए, आप देखिए उनके घर में सर रौस मसूद, इकबाल कौन, सर मोहम्मद इकबाल, अल्लामा इकबाल, साहबजादा आफ्ताब अहमद खान, सर ज़ियाउद्दीन अहमद। मैं नाम तारीखी तरतीब नहीं है इसमें, लेकिन ये सब नाम नजर आते हैं जो उस मिशन को, जो उस विजन को आगे बढ़ाने में बहुत काम। और ये वो जनरेशन थी, याद रखा कि 17 अक्टूबर को पैदा हुए थे तो उस दिन एक जलसा हो गया। लेकिन ये जो चेन थी अलीग वाली, ये बढ़ती चली गई। आप तसव्वुर करें कि अलीगढ़ में सारी दुनिया में लोग पढ़ते हैं, लेकिन अलीग ये अजीबोगरीब कौम है। अच्छा, फिर बाद में लोगों ने तराना बन गया, जो मजाज की नज़र थी, नजर अलीगढ़, उसको इश्तियाक मोहम्मद खान ने म्यूजिक देके उसको तराना बना दिया। फिर जैसे जैसे वसाइल बढ़ते चले गए, वैसे वैसे लोग अलीग यहाँ से निकले, तालीम हासिल करके दुनिया में फैल गए। और जब दुनिया में फैल गए तो ऐसा नहीं किया उन्होंने कि अपने दोस्तों को भूल गए। आप यकीन करें कि आज आप यहाँ से जाएं और कहीं चली जाएं, किसी मुल्क में चली जाएं, दुनिया किसी मुल्क, वहां पर एक छोटी सी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन मौजूद है और उसमें आप रजिस्टर खुद को करा दें। तो फिर आप ये मेरा चमन है, मेरा चमन वहां लाते फिर आपको कोई जहमत नहीं करनी पड़ेगी, सब काम। जब हम आए थे यहाँ, पिछली सदी का किस्सा है 97 में, तो उस साल हमने वो कम्युनिटी डिनर किया था जो दुनिया का शायद सबसे बड़ा डिनर होता था। आप जो आफ्ताब हॉल के सामने जो टर्फ है, वो है ना हॉकी ग्राउंड है, वहां से और एकदम ओल्ड बॉयज लॉज तक इतने बड़े एरिया में दस्तरखान लगता था और उसमें हर हॉल का अपना, जैसे यहाँ तक आफ्ताब हॉल है, यहाँ सर सैयद हॉल है, यहाँ सुलेमान हॉल है, यहाँ पर सबसे आखिर में उधर अब्दुल्ला हॉल, उधर से लड़कियों की एंट्री, इधर से लड़कों की एंट्री, इधर, और हर जगह सिक्योरिटी का इंतजाम। और सब अगर आप ऊपर से व्यू लें तो आपको एक साथ 20,000 प्लस 25,000 30,000 आदमी रोटी खाता नजर आता। ये था लुत्फ कम्युनिटी डिनर का, ये मकसद ये है। और ये इस वाले डिनर एक डिनर में शिरकत की, और ये डिनर सारी दुनिया में मशहूर। इस डिनर में जो कुछ होता है वो भी ट्रेडिशन का हिस्सा बन गया है, वो रोजाना ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। ये सिर्फ उसके बूढ़े आदमी के खुलूस की बरकत, और ये जब तक दुनिया कायम, हमारे ख्याल से इसमें कमी नहीं आएगी। चाहे इंसान कितना मुनाफिक बन जाए, चाहे इंसान कितना खुदगर्ज बन जाए, चाहे इंसान कितना सेल्फ सेंटर्ड हो। This is what Sir Sayyid Day feels like. A beautiful blend of Eid's joy and Diwali's celebrations, dinners, mushairas and shirwani. A day that belongs to everyone. And this is why it is referred to as Eid-e-Alig. Because here, Eid-e-Alig isn't about region or religion. It's the day of every student who has walked the corridors of AMU. Imagine there was a time when people threw stones at him when asking for donations, just because he dreamt of an India where knowledge erased darkness. The man who said, हिंदू और मुसलमान एक खूबसूरत दुल्हन की दो आंखें हैं और वो दुल्हन हिंदुस्तान है. In an age of division, he preached unity. In an age of ignorance, he faced criticism, ridicule and even isolation. Yet, brick by brick, he built an idea that became Aligarh Muslim University. Who was so brave at that time? Who could be so visionary? Who had so much of courage? None other than Sir Syed Ahmad Khan. From Aligarh to Australia, from campus lawns to global conferences, Sir Syed's vision didn't stop at borders. It became a movement of mind, of courage, of change. Maybe this day isn't just about remembering him. It's about asking ourselves, are we still carrying that torch of knowledge and unity that he lit? Because Sir Syed didn't build a university. He built a mindset that still whispers, अपनी तकदीर जगानी है तो उठ खड़े हो और इल्म की रोशनी से अपनी जिंदगी संवारो. So, tell me, what does being in a league mean to you? Drop your answers in the comments. And don't forget to hit the subscribe button for more stories that celebrate courage, community and curiosity. अमनी की तरफ से हैप्पी सर सैयद डे.